Welcome back everyone on RP Academy. So this is the third lecture of Basics of Agriculture. अभी तक हमने डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देखा था एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट व्हिच इज द लास्ट वन वी विल ट्राई टू कवर इट ऑल. हमने थोड़ा सा इसको लेंदी रखा है सो दैट यू कैन लाइक रीड बेटर, यू कैन सी बेटर. सो अब हम यहाँ पे देखते हैं इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स एंड नेशनल रिसर्च सेंटर्स. इसके बारे में हम देखते हैं. Like we have four deemed universities: ICAR, that is in New Delhi, Indian Agriculture Research Institute; ICAR, National Dairy Research Institute, Karnal; ICAR, Indian Veterinary Research Institute, Idzanagar; and ICAR, Central Institute of Fisheries and Education is in Mumbai. So I'm not going to put any lines or marks over there so that you can take the screenshot and you can learn that for the later half. जब आप पढ़ेंगे तो आपको देखने में थोड़ा आसान होगा. इंस्टीट्यूशन जो हमारे पास है वो 65 हैं. एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन: सेंट्रल आइसलैंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पोर्ट ब्लेयर में है. एरिड जोन का जोधपुर में है. एविएशन रिसर्च इंस्टीट्यूट एवाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट इट्सनगर. इनलैंड फिशनरीज आपका बैरकपुर. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर चेन्नई में. इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफलोज आपका हिसार में. रिसर्च ऑन गोट आपका मक्खाडूम में. एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए आप भोपाल की तरफ देखते हैं. एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर. कॉटन रिसर्च आपका नागपुर में. फिशरीज टेक्नोलॉजी कोचीन में. फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर में. कॉटन टेक्नोलॉजी मुंबई में. सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ. टेम्परेचर हॉर्टिकल्चर श्रीनगर. पोस्ट हार्वेस्ट engineering and technology is in Ludhiana. Marine fishery research, that is in Kochi. Central Plantation Crop Research Institute is in Kasargod. Potato Research Institute is in Shimla. Jute and Allied Fibers, that is in Bagpur. Institute of Dryland Agriculture is in Hyderabad. Rice Research Institute is in Cuttack. Central Sheep Wool Research Center is Avantika Nagar, that's in Rajasthan. Soil and Water Conservation is in Dehradun. Salinity Research Institute, Karnal. Tobacco Research Institute, Rajamundry. Central Tuber Crops Research Institute, Trivandrum. Research Complex of Eastern Region is in Patna. Research Complex of NEH Region is in Barapani. Coastal Agriculture Research Institute, Ella, Old Goa, that is in Goa. Agriculture Research Institute is in Delhi. For grassland and fodder is in Ranchi. For agriculture biotechnology, it's in Ranchi. Horticulture research, Bengaluru. Natural raisins and gums. Raisins आपके किशमिश, gums जो आपको डिफरेंट उसके कहते हैं सब डिविजन्स में आता है, दैट इज इन रांची. Pulses in Kanpur. Soil science in Bhopal. For spice research, we are going to Calicut. Sugarcane research, that is Lucknow. Vegetable research in Varanasi. Agriculture research and management is in Hyderabad. Biotic stress management, Raipur. Abiotic stress management, Malegaon, Maharashtra. Animal nutrition and psychology is in Bengaluru. Natural fiber engineering and technology is in Kolkata. Institute of Veterinary Epidemiology and Disease Informatics is in Hubbell, Bengaluru. Sugarcane Breeding Institute is in Coimbatore. Vivekanand Parvatiya Krishi Anusandhan Sansthan is in Almora. Central Institute for Research of Cattle is in Meerut. मेरठ में आपने ढेर सारी पैंट्स देखी होंगी जिसमें कैटल्स आती हैं. एंड नाउ वी आर गोइंग टू हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीजेस इन भोपाल. मेज रिसर्च सेंटर लुधियाना. एग्रो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इन झांसी.
Agriculture, Economics and Policy Research is in Delhi. Wheat and Barley Research, Karnal. Farming System Research is in Modipuram. Indian Institute of Millet Research, Hyderabad. Oilseed Research, Hyderabad. Palm Oil Research is Pedavagini in West Godavari. I'm sorry for this pronunciation. Indian Institute of Water Management is in Bhubaneswar. Rice Research Center is in Hyderabad. Women's in Agriculture, Central Institute for Women's in Agriculture is in Bhubaneswar. सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इन नागपुर. सिट्रस आप जानते हो, सिट्रस भी आपके खट्टे विटामिन सी के जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम सिट्रस कहते हैं. इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर सी साइंस इज इन माओ. इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पोस्ट बॉक्स नंबर 48 हजारीबाग झारखंड. So this is the list of 64 institutes, national institutes, I'm sorry. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. द डीम्ड यूनिवर्सिटी, देयर आर 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी and 65 institution. So I'm giving a time. ये page 1 है. This is the page 2 which consists from 9 to 22. This is 23 to 37. This is 38 to 49 and this is 50 to 64. I hope you have taken the screenshot for this. And the 65th is over here, sorry. National Institute of Plant Biotechnology, that is in Delhi. Now we are going to see the National Research Center, 15 National Research Center, जो डिफरेंट डिफरेंट आपके फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के लिए. लाइक द बनाना इज फॉर त्रिची, ग्रेप्स फॉर पुणे, लीची इज ऑफ मुजफ्फरपुर. आप ये मान के चलिए जो चीज़ जहाँ की फेमस है या जहाँ पे उन्होंने रिसर्च सेंटर खोले उसके आसपास की जगह है. पोमोग्रेनेट अनार आपका सोलापुर, कैमल आपका बीकानेर, इक्विंस आपका हिसार, मीट आपका हैदराबाद, मिथुन मेड्जेम्पांडा मेड्जीपेमा ये आपके नागालैंड में, ऑर्किड पायाकोंग आपके सिक्किम में. ऑर्किड एक बहुत ही अच्छा फ्लावर होता है. इट्स एक्सपेंसिव फ्लावर जो अपनी मतलब आप गिफ्ट देते होंगे तो आपको देखा होगा. इट्स अ वाइट येलो कलर सॉरी ब्लू कलर फ्लावर. इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. पिग गुवाहाटी. सेंटर फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी इज इन दिल्ली, जो कि आप यहाँ पे आपने देखा है, ये यहाँ पे भी है आयकर का. फॉर सीड स्पाइसेस इज अजमेर. फॉर याक इज वेस्ट केमैंग. याक आपका एक जानवर होता है जिसके ऊपर ढेर सारे फर होते हैं. या आपने हिली रीजन्स पे देखा होगा नॉर्मली जहाँ पे आपका स्नो होता है. इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज न्यू दिल्ली. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू पुट एनी मार्क ओवर जहाँ पे रिटन है. आई एम पुटिंग मार्क ऑन द साइडवेज. And the 15th comes Mahatma Gandhi Integrated Farming Research Institute, that is Motihari. Now there are 6 national bureaus. So the first one is National Bureau for Plant Genetic Resources is New Delhi. National Bureau of Agriculture Importance in Microorganism is in Mau, Uttar Pradesh. National Bureau of Agriculture Insect Resources is in Bangalore. The National Bureau of Soil Survey and Land Using is in Nagpur. National Bureau of Animal Genetics Resources is in Karnal. National so National Bureau of Fish Genetic Resources is in Lucknow. And now we are going to see the 13 project directorates. Now the director of groundnut research is in Junagadh. For soybean research, Indore. Rapeseed and mustard research is in Bharatpur. Mushroom research, Solan. Onion and garlic is in Pune. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. Yeah. So for Cashew Research Center is Puttur. Medicinal and Aromatic Plant Research Center is in Anand.
Floriculture research is in Pune, Maharashtra. Weed research is in Jabalpur. Foot and mouth diseases, Mukteshwar. Directorate of Poultry Research is in Hyderabad. Directorate of Knowledge Management of Agriculture (DKMA) is in Delhi. And Directorate for the Cold Water Fisheries Research Center is Bhimtal, Nainital. Now we are going to see the 11 टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर्स जहाँ पे आपको टेक्नोलॉजिकल चीज़ें मिलती हैं. एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर इज इन जोन 1 आईकार PAU campus Ludhiana, that is Punjab. Now the second one comes in Jodhpur, Rajasthan. Now we are going to see. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, that is much better. Third one comes in Kanpur, Uttar Pradesh. Fourth one comes in Patna, Bihar. Fifth one comes in Kolkata, West Bengal. Then the Assam, Guwahati. Then Rebhui district of Meghalaya. Then Pune, Maharashtra. Then Jabalpur, Madhya Pradesh. Then Hyderabad, Telangana. And the last one is Hebel in Mangaluru. So this was some फैक्ट्स या जो भी टेबल्स थी जो आपको याद रखनी होंगी, कहीं ना कहीं पे ये इनके रिक्वायरमेंट आ जाती है. नॉट दैट मच बट हाँ, ये कहीं ना कहीं पूछा जाता है. लाइक फ्लोरिकल्चर रिसर्च कहाँ पर है, सो आपको ये याद करना पड़ेगा, ये याद करने की चीज़ है. एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द समथिंग जो इंडिया से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट द इम्पोर्टेंट एक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर. जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स हमने लाए, गवर्नमेंट डिफरेंट अपने पॉलिसीज को लेकर आई जिससे कि उनका विद होल्ड बेटर हो, जिससे कि वो बेटर गवर्न कर पाए एंड कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो. तो सर उसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है प्री इंडिपेंडेंस एक्ट. इंडिपेंडेंस से पहले कौन सा एक्ट, लाइक लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 1894. मैं इसको आपको एक थोड़ा सा एक बेटर वे में बता दूंगा. लाइक बेटर वे इज लाइक मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड देन आई विल बी रीडिंग आउट व्हाट आई हैव रिटन इन द नोट्स. लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 में जो आया था उसका काम क्या था. उसने बेसिकली गवर्नमेंट को एक ये पावर दी थी कि आपके पास एक पावर है कि जो प्राइवेट लैंड है, जो एक आम आदमी ने खरीद लिया है, आप उससे उसको ले सकते हैं पब्लिक पर्पस के लिए. यू आर नॉट टेकिंग फॉर योर सेल्फ, यू आर टेकिंग ऑन द नेम ऑफ द पब्लिक पर्पस. अब उसमें क्या था, आपको पर्पस पब्लिक पर्पस क्या क्या हो सकते हैं. रोड बनना है, इरिगेशन का प्रोजेक्ट है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. लोग बोलते हैं ना हमारे हमारी ज़मीन पे से हाईवे निकल गया, अब तो पैसा ही पैसा आएगा. ये है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894. इसके बहुत सारे इश्यूज भी हैं जो अभी भी चलते हैं कि भाई लोग ने बोला कि भाई मेरे घर के सामने से हाईवे निकल के गया, तो भाई मेरे को तो लैंड के अच्छी वैल्यू मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं मिली. तो ये भी होता है कि भैया अनफेयर कंपनसेशन मिलता है. अब इसी लॉ को बाद में रिप्लेस करा जाता है एक और लॉ से, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013. ये आप आगे देखेंगे. तो ये एक वो लॉ है जो प्री इंडिपेंडेंस था एंड कैसे ये बदला गया. सो दिस इज आवर थिंग. जैसे कि अगर मैं इसका एक सबसे आपको बेटर एग्जांपल बताऊं, तो जो भाखड़ा नंगल डैम जो बना है, भाखड़ा नंगल डैम, उसके लिए जो लैंड एक्वायर करी गई थी वो अंडर दिस एक्विजिशन, अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894. So now we are going to study what I have written. This act grants the government the power to acquire private land for the public purposes, including agriculture development projects. It has faced criticism for potential misuse and unfair compensation of the landowners. जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो मैं इसको यहाँ नहीं लिखूंगा क्योंकि उससे लेक्चर्स आपके लिए लंबे हो जाएंगे. लाइक कुछ थिंग्स आपके लिए एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा बेटर है एज कंपैरिजन टू मैं उस चीज़ को आपको लिख के दूँ. नाउ वी आर गोइंग टू सी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. नाउ इन्होंने जो अब करा इन्होंने एक फाउंडेशन बनाई कि भाई सेपरेट डिपार्टमेंट होने चाहिए एग्रीकल्चर के लिए और नॉर्मल चीज़ों के लिए. लाइक जो एग्रीकल्चर है उसे हम एक सेपरेट स्टेट देना चाहते हैं कि उसको हम कमर्शियल में एग्रीकल्चर से अलग रखेंगे. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहता है, दिस एक्ट लेड द फाउंडेशन फॉर
provincial autonomy and establishment of separate department for the agriculture in the different provinces। कि भाई एग्रीकल्चर को एक अलग दर्जा दिया जाएगा, उसको सबके साथ जोड़ा नहीं जाएगा। इसके लिए एक अलग बॉडी होनी चाहिए एंड सेपरेट गवर्नेंस होनी चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर हमारे। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द पोस्ट इंडिया एक्ट, पोस्ट इंडिपेंडेंस एक्ट। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक आपका है ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट ऑफ 1937। अब इसका काम क्या होता है, AGMAR के AG, इसको हम शॉर्ट बोलते हैं AGMAR के सर्टिफिकेशन। ये सर्टिफिकेशन आपके फ्रूट, सीरियल, पल्सेस, घी, इन सब के ऊपर लगता है कि भैया ये टैग है कि भाई प्योरिटी का टैग। अब ये जो जो मार्क है, ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग में काम, मार्केटेबिलिटी में काम आता है। आप जब बाहर प्रोडक्ट को भेजते हैं, लाइक यू आर एक्सपोर्टिंग द थिंग, ये वहां पे आपको काम है। तो देखते हैं हम इसको, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937। शॉर्ट फॉर्म इसकी होगी AGMAR के, ये आपने देखा होगा। दिस एक्ट एस्टैब्लिश गवर्नमेंट established standard and grades for agriculture products aiming to improve quality and marketability। ग्रेड्स आपने डिफरेंट डिफरेंट सेट कर दिए कि भाई ये हमारा ग्रेड है, इसके हिसाब से आपको चीज़ें बनानी है। अगर ग्रेडिंग के हिसाब से आप नहीं पहुंचेंगे तो आपको उस चीज़ का मार्क नहीं दिया जाएगा, भी बिलो सब स्टैंडर्ड, आप सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी Essential Commodity Act 1955। This act empowered the government to control the production, supply, distribution of essential commodities like food grain, oil, seed to ensure their availability in the fair price। अब ये देखिए, जैसे कि हमने मान के चला कि एक सीजन में हमारे पास कोई प्रोडक्ट उगता है, जैसे कि आप अनियन प्राइस देख सकते हैं, प्याज के साथ चलता है ये कि भाई प्याज उग रहा है, फिर प्याज मार्केट में एकदम से आना बंद हो गया, प्याज कितना पहुंच गया, 100 रुपये पहुंच गया, 120 पहुंच गया। बिना प्याज खाने वालों ने बोला हम तो खुश हैं, हम तो खाते ही नहीं, लेकिन लोग तो खाते हैं। सो ये जो मार्केट प्राइस ऊपर नीचे चलता है, इसके लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आपका 1955 का है। तो इनका काम ये है कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा उग रही है तो हम उसे अपने पास भी रखें, हम उसे सेव करें एंड कोल्ड स्टोरेज में उसे रखा जाए, ताकि जब कम हो, जिस सीजन में उग ना रहा हो, उस टाइम पे ओवर प्राइस एक प्राइस पे लोगों को नहीं दिया जाए। तो इसलिए ये एक्ट आया था। नाउ मिनिमम वेज एक्ट ऑफ 1948। मिनिमम वेज एक्ट आपको कहता है कि भाई आपके पास एक मिनिमम वेज होना चाहिए आपके फार्मर के लिए, या आपके फार्मर के लेबर, जो फार्मर लेबर्स होते हैं, सॉरी जो लेबर काम करती है फार्मर्स पे, ये उसके लिए होता है कि भाई आपको दिन का, सपोज करिए कि 500-600 तो आपको देना ही देना है। ये है मिनिमम, जिसको कहते हैं मिनिमम भत्ता हिंदी में। तो आपको देना ही देना है, ये उसका ये रेट है। तो इसी को हम देखते हैं। दिस एक्ट sets the maximum wage for agriculture labor, improving the aiming to improve their living standard and the working condition। कि कहीं भाई आपका एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं हो रहा है, काम के नाम पे आपको दिया जा रहा है कम पैसा, इसलिए। लैंड सीलिंग एक्ट, स्टेट एक्ट्स। लैंड सीलिंग एक्ट का काम ये होता था, ये लिमिट पुट करता है कि कितनी एक एग्रीकल्चर लैंड एक आदमी ओन कर सकता है। लाइक ऐसा नहीं है कि वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के हिसाब से होता है कि भाई स्टेट के हिसाब से कि एक आदमी के पास लिमिट होती है इतनी, और इसके ज़्यादा अगर है तो भैया आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, दूसरे लोगों को देना पड़ेगा, भैया ऐसे एक के पास इतना सब कुछ नहीं कर सकता। वेरियस स्टेट enacted the Land Ceiling Act between 1950 and 1970, imposing limits on land holding to promote land redistribution and reduce disparity। कि भैया सबको लैंड सबके पास होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि एक ने सब पूरा खरीद लिया and पूरा खरीदने के बाद वो किसी और को नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं। नेशनल सीड एक्ट 1966। नाउ दिस रेगुलेट, इसको हम कहते हैं कि ये रेगुलेट करता है प्रोडक्शन, सर्टिफिकेशन एंड क्वालिटी ऑफ सीड्स को चेक करता है। जैसे कि अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं,
तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा स्टार्ट हुआ था, उसमें हाई वैरायटी ऑफ HR8 राइस जो डेवलप करा गया था, उसको पूरे में डिस्ट्रीब्यूट करा कि भैया अपने राइस को बदलो एंड दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ राइस, तो ये वहां से आया। दिस एक्ट रेगुलेट्स द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड सेल ऑफ सीड टू इंश्योर क्वालिटी एंड प्रिवेंट द एडल्ट्रेशन। ये एडल्ट्रेशन में भी काम आता है कि भैया मिलावट ना हो रही हो। ऐसा नहीं हो कि देखा IR8 का नाम से अपने चावल बेच रहे हो, वो IR8 हो ही नहीं। तो ये उस चीज को भी देखता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी फार्मर्स मार्केट रेगुलेशन एंड मार्केटिंग एक्ट ऑफ 1967। सो इस एक्ट का बेसिकली काम ये था, ये काम आया जो मिडिल मैन है। फार्मर लेकर आया अपने गेहूं और कहते जो भी चीज उसने उगाई, वो लेकर आया। जब वो आया तो उसको उसको सेल करना है। अब बीच में बैठा है एक मिडिल मैन। मिडिल मैन का काम क्या है कि भैया अब तो हम फार्मर से कर लेंगे एक्सप्लॉइट, और आगे हम तभी बेचेंगे जब उससे हम ले लेंगे भर के पैसा। तो ये एक्ट वहां पे आया कि भैया नहीं, जो फार्मर ला रहा है और जो मार्केट का रेट है उसमें उसको बेस्ट प्राइस मिले। ये बीच के मिडिलमैन जो खा जाते हैं कि भैया हम तुम्हारा सामान खरीद रहे हैं, आगे हम बेच देंगे, वो नहीं हो। ठीक है। तो इसी को हम देखते हैं, फार्मर मार्केट रेगुलेशन एंड रेगुलेशन ऑफ मार्केटिंग एक्ट 1967। दिस एक्ट सीक्स टू रेगुलेट एग्रीकल्चरल मार्केट टू प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय द मिडलमैन। अब जैसे कि इसका एक बहुत एग्जाम्पल सिंपल सा है, जो फार्मर्स राइस या वीट को सेल करने जाते हैं मंडी में, तो उनको एक APMC सिस्टम के थ्रू जाना पड़ता है। बाय द मोस्ट रेट APMC आपको बेस्ट प्राइस देता है। ये है आपके लिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट्स ऑफ 1968। सो ये बेसिकली एक कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट का आपको मेन एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं पहले, तो वो है अमूल। ढेर सारे लोग जिनके पास गाय थी, उन्होंने एक अपने सबके प्रोडक्ट्स को मिलाया, लाइक मिली जुली एक सोसाइटी की तरह, एंड नाउ दे आर वर्किंग फॉर अमूल। वो वहाँ पे दे रहे हैं, दे आर अर्निंग गुड फ्रॉम देम, वहाँ से एक अच्छी अमाउंट कमा रहे हैं। तो ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक छोटा सा एग्जाम्पल, इससे आपको समझने में बेटर रहेगा। दिस एक्ट encourages फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग of cooperative society, empowering farmers to collectively market their product and access the resources। ढेर सारे लोग एक साथ एक ही जैसा काम करके अपने अपने पैसे उसमें से कमा रहे हैं। Now we are going to see the Protection for Plant Varieties and Farmer Act 2001। अब ये नॉर्मली जो है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफ फार्मर्स और उनकी जो ब्रीडिंग, जो उनके फार्म प्लांट ब्रीड्स हैं, जो प्लांट ब्रीडर हैं, उनको करता है। लाइक जैसे किसी एक फार्मर ने न्यू वैरायटी मान के चलिए उगा ली, अब उसके बाद उनको जो क्लेम है और रिकॉग्नाइजेशन और शेयर, उनका बेनिफिट शेयरिंग है, वो मिलना चाहिए। कि अगर मान के चलिए कि किसी ने वीट की सुपीरियर क्वालिटी डेवलप कर ली, तो भाई उसको रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए, आगे लोग इस्तेमाल करेंगे तो उसको भी पैसा मिलना चाहिए। ये उस चीज़ के लिए है। लाइक इंडिया बहुत ही फ्यू कंट्रीज में से है जिसने लीगली रिकॉग्नाइज करा है फार्मर को एज अ प्लांट ब्रीडर। बाकी कोई और कंट्री नहीं है। इंडिया इकलौती वो कंट्री है जिसने इसको प्लांट ब्रीडर की तरह माना है। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स एक्ट 2001। दिस एक्ट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ फार्मर एंड प्लांट ब्रीडर ओवर द प्लांट varieties। Okay, now we are going to see legal recent legislative reforms of 2022 ही हम मानते हैं सारे 2022 में, 2020 में सॉरी कहते बने हैं। द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट ऑफ 2020। सॉरी फॉर दिस। नाउ इसकी वजह से क्या होता है, जो फार्मर था पहले APMC मार्केट में जाता था, अब वो डायरेक्टली पुश कर सकता है प्राइवेट के पास।
पहले एक फार्मर को एपीएमसी में जाना पड़ता था, एपीएमसी में उसका रेट लगता था, फिर वो आगे जाता था आपके प्राइवेट फील्ड्स में, जहाँ पे उसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, आपका कहते हैं गुड्स का होता है या आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का होता है। बट यहाँ पे जो मिडलमैन एपीएमसी था, उस मंडी को यहाँ से हटा दिया गया। तो इसी के बारे में हम देखते हैं, इससे जो कॉन्ट्रैक्ट सेल्स होती है, जैसे कि हम मान के चलते हैं, लेज एक कंपनी है, उन्होंने एक साइज बना रखा है कि भाई हमारा जो आलू है उसकी एक सर्टेन विथ है, उसकी एक सर्टेन थिकनेस है, एंड वी वांट दैट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर अस, ताकि हमारे क्वालिटी की मेंटेनेंस रहे, हमारे चिप्स या हमारे ब्रांड का नाम रहे। तो यहाँ पे वो जो लोग होते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, दे आर गिविंग द थिंग्स अंडर द सर्कमस्टेंसेस एंड अंडर द करंट व्हाट यू कॉल इट एनवायरनमेंट, वहाँ पे उस चीज़ को बनाया जाता है। इससे जो इनकी इनकम है और मार्केट एक्सेस ज़्यादा बेटर हो जाती है। So this is what this act is saying. This act aims to provide farmer with more option of selling their product to their uh, product outside the regulated market, potentially increasing their income and the market access. क्योंकि क्या पता कि बाहर वीट का रेट अगर मैं मानता हूँ 10 रुपए चल रहा है, मेरी क्वालिटी 15 या 20 वाली है, तो मैं 10 पे क्यों दूँ? मैं बाहर भी किसी से बात कर सकता हूँ। ये है इस एक्ट का काम। अगला आपका आता है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट ऑफ 2022। इसका बेसिकली काम क्या है कि भैया ये फार्मर को आपका जो कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करने का ऑप्शन देता है कि वो प्री एग्री कर सकते हैं कि भैया बिफोर शोइंग कि भैया ये चीज़ हमें चाहिए, मतलब आपने अभी तक कुछ भी उगाया नहीं है, उगाने का सीजन आने वाला है, लेकिन उससे पहले प्री कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भैया ऐसा करो, ये फूड, ये कहते हैं, हमने कहते फार्मर था, उसने साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट फूड कंपनी से कि भाई साहब ये सप्लाई है, ये पोटैटो हम उगाएंगे और ये फिक्स रेट हमारा हो गया, इस हिसाब से हम आपको देंगे। अब इससे एक चीज़ बेटर होती है, आपको लगता हो कि भाई खेती से पहले ही कैसे आपने एग्रीमेंट कर लिया, बट इससे ये होता है कि जब वो काम करने जाएगा तो जो मार्केट रिस्क है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, कि उसके पास पहले से पैसा है, उसके पास अश्योरेंस है कि जो उसने उगाया है वो बिकेगा। ये नहीं है कि भैया वो बिक नहीं रहा, वो परेशान है, तो इस एक्ट की वजह से उसे वो मिलता है। तो यहीं पे हम देखते हैं, दिस एक्ट अलाउ फार्मर टू enter into pre-arranged contract with the buyers for the assured pricing and the services, aiming to reduce risk and improvement in market linkages। ठीक है, नाउ इसके बाद हम देखते हैं एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट, दैट इज 2022। नाउ इसमें काम ये होता है, जो डीरेगुलेटेड होता है स्टोरेज और मूवमेंट ऑफ आइटम, जैसे कि सीरियल्स हुए, आपके पल्स हुए, ऑयल हुए, जैसे कि हम सेव करके रख लेते हैं अंडर द गवर्नमेंट, नहीं, हमने अपने पास सेव करके रख लिया, अब प्राइवेट फर्म्स को हम देंगे, तो वहाँ पे प्राइस, वो प्राइस का जो अप एंड डाउन होता है उस चीज़ को डीरेगुलेट करने के लिए ये होता है। इसका एग्जांपल है, ये कंपनीज को अलाउ करता है, दिस अलाउ कंपनी टू स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स टू स्टेबलाइज चेन सप्लाई। कंपनीज ने लंबे टाइम के लिए इसको सेव करके रख लिया, उसके बाद कंपनी इसको ग्रेजुअली स्लोली स्लोली आपको मार्केट में देती रहती, सो दैट प्राइस वॉलेटाइल ना हो, ऐसा ना लगे कि भैया चीज़ अब है नहीं। दिस एक्ट removes cereal, pulses, oilseed, edible oils, onion, potatoes from the list of essential commodities, aiming to deregulate their production, storage, movement and distribution। मैंने आपको जो एग्जाम्पल समझाया था वो इसी में आता है, जो कंपनी स्टोर करती है इन चीज़ों को। अब हम देखेंगे चैलेंजेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर जब इतना बड़ा है, 60% अगर लोग लगे हुए हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस भी ज़रूर आने वाले हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं, क्योंकि हमारे पास छोटी लैंड होल्डिंग्स है, हमने पहले लेक्चर में देखा था कि भाई लोगों के पास 2 हेक्टेयर भी नहीं है,
2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर मतलब कि एक फुटबॉल फील्ड, 2 हेक्टेयर 2 फुटबॉल फील्ड, इतनी भी नहीं है। क्यों डिवाइडेड है? क्योंकि एक पापा से आए, वो 2 बच्चों में बटे, तो वो धीमे धीमे करके वो जो लैंड थी इतने ओवर द आपके ओवर द पीढ़ी दर पीढ़ी वो कम होती गई लोगों के पास, क्योंकि एक के पास अगर 2 बच्चे भी हुए तो दो 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 के मल्टीप्लिकेशन से बढ़ती गई। लैंड का साइज छोटा हो गया, लोग बढ़ते गए, फैमिली बड़ी हो गई, फार्म भले ही बड़ा था लेकिन वो छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब डिवाइड हो गया तो भाई इस पे बड़ी मशीन चलेगी नहीं, आदमी काम करेंगे, एंड उसकी वजह से अब बेटर प्रैक्टिसेस जो अप्लाई कर सकते थे वो अब आप नहीं कर सकते। इंडिया इतना बड़ा है तो मानसून के ऊपर डिपेंडेंसी भी इनकी होती है। लाइक 50 से 60% इंडिया का जो आपका ग्रोइंग सीजन है वो मानसून के ऊपर डिपेंड करता है कि बारिश आएगी तो होगा। लगान मूवी आप सबने देखी है तो आपको थोड़ा बेटर मालूम होगा कि बारिश कितनी ज़रूरी है, वरना क्रिकेट मैच खेलना पड़ता है। आउटडेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो आपका तीसरा इसका पॉइंट होगा, उसमें ये है कि आउटडेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस इसलिए क्योंकि हम अभी भी कॉस्ट सेविंग, क्योंकि हमारे पास इतना, क्योंकि मेन रीज़न यही है कि स्मॉल और फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है जिसकी वजह से हम बहुत कहते हैं मतलब कि रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। लाइक हमें एक ट्रैक्टर खरीदना है तो हम उसे ऑन द रेंट ला सकते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू बाय दैट। तो मैं आपको एक एक करके इनको समझाता जाता हूँ, जस्ट थोड़ा सा फ्लो में थोड़ा तेज निकल गया था। So challenges of Indian agriculture, what you are going to see, the first point is small and fragmented land holding. जैसे कि मैंने आपको कहा था, a significant portion of farmers own a small or fragmented land holding, which is making it challenging to adopt modern agriculture practices and achieve some economies of scale. नहीं है 2 हेक्टेयर लैंड, आप छोटे हैं, आपके पास नहीं आ रही चीज़ें, यू आर नॉट बाइंग थिंग्स फॉर दिस। डिपेंडेंसी ऑन मानसून, Indian agriculture heavily relies on monsoon rain, leading to uncertainty and vulnerability. Inconsistent rainfall pattern and the impact of climate change contribute to water scarcity and drought condition. 60% इंडिया डिपेंड करता है रेनफॉल के ऊपर, उसके हिसाब से एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स मैंने आपको समझाए थे। सब लोग एग्रो फॉरेस्ट्री की तरफ, एग्रो बायोटेक्नोलॉजी की तरफ देखते हैं कि भैया कब बारिश होगी, वेदर रिपोर्ट हमें मिले, उस हिसाब से हम अपनी ग्रोथ करें, हाउ वी आर ग्रोइंग थिंग्स उसके हिसाब से करा जाए। आउटडेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि छोटी जगह है तो आपके पास साइंटिफिक चीज़ें और वो सब टेक्नोलॉजी आप नहीं लगाएंगे क्योंकि आपकी ग्रोथ इतनी है ही नहीं। यू आर नॉट डीलिंग इन बिग थिंग्स, दैट्स व्हाई यू विल बी कंटेनिंग विद द स्मॉल थिंग्स। बहुत छोटी सी बात है ये। ट्रेडिशनल एंड आउटडेटेड फार्मिंग मेथड आर प्रिवेलिंग in many regions, hindering the productivity. Limited access to modern technology, machinery, and scientific farming practices is a barrier to the progress. नहीं है मशीनरीज, नहीं है साइंटिफिक मेथड, बैरियर है ही। नाउ वी आर सीइंग लो प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड गैप। लाइक अगर हम देखें, इसका मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। एवरेज राइस यील्ड जो इंडिया की होती है इस अप्रोक्सीमेटली अराउंड टू 2.7 टन्स पर हेक्टेयर। लेकिन अगर मैं इसी को चाइना से कंपेयर करूँ तो चाइना में यही चीज़ 6 टन्स पर हेक्टेयर होती है अप्रोक्सीमेटली। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कैसे लो प्रोडक्टिविटी कैसे आपको देख सकते हैं। लाइक जैसे जो हम वेरिएशन यूज़ कर रहे हैं माइट भी वो पुराने, मतलब इसके कुछ रीजंस भी हैं। जो टेक्नोलॉजी चाइना के पास है माइट भी क्या मतलब वो हमारे पास नहीं है। जो यील्ड उनके पास है, जो बायोटेक्नोलॉजी उनके पास है, लाइक हाउ दे आर इवॉल्विंग थिंग्स, हाउ दे आर मेकिंग न्यू हाइब्रिड थिंग्स, वो हमारे पास नहीं है। हम आउटडेटेड होते जा रहे हैं। सो उसी चीज़ को हम देखते हैं, प्रोडक्टिविटी लेवल of Indian agriculture are often lower than the global standard. हमारी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं लेकिन हम अभी भी पीछे हैं। Yield gap persists due to various factors such as inadequate irrigation, outdated seed variation, insufficient use of fertilizers and pesticides. फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड देख के आप ये मत सोचिए कि कोई से भी डाल दे, इट शुड बी ऑर्गेनिक।
ऑर्गेनिक नहीं डालोगे तो 2 साल भले ही अच्छे उग गए, अगले साल नहीं उगेगा, बिकॉज सॉइल का कंटेंट लो हो जाएगा। लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन आपको बताता है कि जैसे कि हम ओवर रिलायंट करते हैं राइस और व्हीट के ऊपर। इंडिया में सबसे ज़्यादा राइस और व्हीट उगाया जाता है, लेकिन राइस और व्हीट की वजह से जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप ये देखो, पंजाब पंजाब में सॉइल और जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ज़्यादा कहते डिप्लीट होता जा रहा है बिकॉज ऑफ मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग मतलब दे आर जस्ट ग्रोइंग टू थिंग्स, दैट इज राइस एंड व्हीट, जिसकी वजह से ये हो रहा है। आपको डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एक सीजन आपने वो चीज़ उगाई जिससे आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट सॉइल से निकाला गया है, तो अगले सीजन में आप उसको उगाओ जिससे कम न्यूट्रिएंट्स ले, सो दैट लॉन्जिविटी हो आपके पास। नाउ वी सी लैक ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन, डिग्रेडेशन एंड डिक्लाइन फर्टिलिटी आर सिग्निफिकेंट challenges. Unsustainable agriculture practices contribute to soil erosion, impacting long-term productivity. ठीक है, now we are going to see ninth, lack of market access and infrastructure. I'm sorry. I guess something we have missed in middle. Ah, this was what I was thinking about. I just एक पेज हम आगे चले गए, so हम देख रहे थे lack of diversification. That's what I was thinking. Lack of diversification, like excessive focus on the few staple crops of rice and wheat has led to the lack of diversification. Crop diversification is crucial for sustainable agriculture and mitigating risks associated with pest, disease, and the market fluctuation. जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे पहले, वाटर मैनेजमेंट इश्यूज, लाइक अगर हम देखें एग्रीकल्चर में 85% इंडिया फ्रेश वाटर को यूज़ करता है, एंड जिसकी वजह से एफिशिएंसी नीचे जाती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल वाटर मैनेजमेंट इशू सबसे बड़ा आप देखते होंगे, क्या कहते हैं आपका जो आपका है हरियाणा और गुजरात की जो स्टेट्स हैं, हरियाणा गुजरात की स्टेट्स का वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है। वो नीचे जा क्यों जा चुका है, बिकॉज ओवर पंपिंग ऑफ अपने ग्राउंड वाटर करा है अपने इरिगेशन के लिए। सो द पुअर वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग इनएफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम एंड ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल कंट्रीब्यूट टू वाटर स्कैसिटी एंड डिप्लीशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज। धीमे धीमे वो पानी की रिसोर्सेज खत्म होती जा रही है, द वाटर लेवल इज गोइंग डाउन एंड यू कैनॉट डू एनीथिंग विद दैट। पानी नीचे जाना इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, छन के डिफरेंट डिफरेंट बेड्स के साथ जाता है, डिफरेंट जोन से, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप उसे बहुत जल्दी मैनेज कर पाए। नाउ लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोजन, अगर हम देखें तो जो फैक्ट कहता है, व्हाट फैक्ट सेज इज लाइक 30% ऑफ इंडियाज टोटल लैंड इज डिग्रेडेड। क्या इसके कॉजेज होते हैं, आपके इसके कॉजेज भी होते हैं, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, केमिकल यूजेस। तो ये है एक सॉइल डिग्रेडेशन का मेन रीजन, सॉइल इरोजन। नाउ दिस से सॉइल इरोजन, डिग्रेडेशन, डिक्लाइनिंग fertility are significant challenges. Unsustainable agriculture practices, unsustainable agriculture processes क्या होती हैं, increasing use of chemicals, contribute to soil erosion and impact a long term productivity. जल्दी जल्दी आपने सब कुछ कर लिया, 5 साल अच्छे से खेती हुई, उसके बाद वो लैंड हो गई बैरन। उसके लिए भी डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, वो आप आगे देखेंगे, उसको हम अभी डिस्कस नहीं करते, देन अदरवाइज द लेक्चर वुड गो वेरी वेरी लॉन्ग, बेसिक्स बहुत लॉन्ग है इसके। सो द लैक ऑफ मार्केट एक्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। लैक ऑफ मार्केट एक्सेस क्या होता है, अब जैसे आप समझते हो कि खेत में जाना है, खेत में जाने के लिए आपके पास रोड खराब है, स्टोरेज है ही नहीं, कोल्ड स्टोरेज नहीं है। अब जो आपने हार्वेस्ट कर ली, उस हार्वेस्ट को करने के बाद आपके पास लैंड नहीं है, आप टूटते फूटते आप उसे लेके ट्रैक्टर में लेके जा रहे हो,
दैट इज लाइक आपको वो एक प्रॉपर एवरेज नहीं दे रहा, आपका ओवर फ्यूल यूज हो रहा है, फ्यूल आप ज़्यादा यूज कर रहे हो, कनेक्टिविटी आपकी मतलब मान के चलिए फार्म से मार्केट में कनेक्टिविटी आपकी ज़्यादा बेटर नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप पास वाली जगह जाओगे, आप वहीं पे जाके दे दोगे। और अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर ढेर सारे, अगर मतलब मैं एक फार्मर हूँ, मेरे पास 100 किलो का कुछ चीज़ है, मैं उसको लेके गया मार्केट में, मैं मार्केट में लाके मैंने उसे खड़ा कर दिया, अगर किसी ने मुझे मन मुताबिक रेट नहीं दिया तो मैं उसे वापस लेके तो नहीं आऊंगा। 100 किलो में सामान लेके गया हूँ, मैं 100 किलो वापस लेकर आऊँ, फिर मैं अगले दिन फिर भी लेकर आऊँ। तो इस वजह से मैं उसको जो मिनिमम रेट मुझे मिल रहा होता है मैं उसको उसी पे बेच देता हूँ। ये है मेरी खराबी, लैक ऑफ मार्केट एक्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर मेरे पास एक प्रॉपर रोड होती या प्रॉपर एक स्टोरेज होता मेरे फार्म के आसपास या कोल्ड स्टोरेज भी होता, तो मैं अपने सामान को बचा पाता, लेकिन मुझे क्या करना पड़ा, मुझे बेचना पड़ा, जो भी रेट मुझे मिला उसको मैंने बेच दिया। Farmer often face challenges in accessing market, resulting in limited opportunities to sell their product at a fair price. Inadequate storage, transportation, and market infrastructure add to the difficulties. ये भी एक फैक्टर्स आपको दिखाए जाते हैं। पेस्ट एंड डिसीजेस। नाउ आपने सुना होगा लोकस्ट अटैक एक होता है, ढेर सारे कीड़े आपके उड़ के आते हैं रात भर में, आपके यहाँ घर पे बाहर आके चिपक जाते हैं। अब ये सोचिए कि वो जो आपके घर में आके चिपक गए वो तो बहुत कम है, खेतों में जाके वो चिपक जाते हैं, पूरी की पूरी जो की फसल है वो खराब कर देते हैं। आपने सुना होगा 2020 में आया था लोकस्ट, लोकस्ट अटैक हुआ है कि राजस्थान गुजरात से कीड़े आ रहे हैं भर भर के, कीड़े आर कमिंग, कब जाएंगे देखा जाएगा। दिक्कत ये नहीं है कि वो चिपक गए, दिक्कत ये है कि जब वो मर जाते हैं उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो लाइक व्हेन दे आर कमिंग, ठीक है आपने खा लिया, लेकिन आप जब वहीं पे खेत में गिर के मर गए, उसकी वजह से जो आपका वो होता है डिफरेंट, आपका सॉइल का कंटेंट वो बदल जाता है, सॉइल का फॉर्मेशन बदल जाता है। एंड इसकी वजह से जब ये आता है तो आपको कहते हैं पेस्टिसाइड्स भी डालने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है पेस्ट आ रहे हैं। अब पेस्ट डले तो वो भी सॉइल में, सॉइल की प्रोडक्टिविटी नीचे होगी। तो इस चीज़ को हम देखते हैं, क्रॉप पेस्ट एंड द डिसीजेस पोस्ट a constant threat to agriculture productivity. The over-reliance of certain crop and the lack of effective pest management strategy exacerbate this challenge. Now we are going to see technology adaptation barrier. अब टेक्नोलॉजी एडोप्टेशन बैरियर क्या है, ये भी आप समझ सकते हैं विद द नेम, कि भाई हमारे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के लिए आपको लगाना पड़ेगा पैसा। जब लैंड उतनी ज़्यादा है ही नहीं तो भाई क्यों लगाएगा कोई इंसान पैसा। हमारे पास मेनली फार्मर्स कौन से हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, दे आर नॉट गोइंग टू यूज टेक्नोलॉजी। अगर हम देखें तो प्रिसीजन फार्मिंग हम कहेंगे वो प्रिसाइज टूल जो बिना जुगाड़ के, मतलब इंडिया में हम जुगाड़ पे ज़्यादा चलते हैं, तो प्रिसीजन फार्मिंग समथिंग जहाँ पे हमें जुगाड़ का इस्तेमाल नहीं करा है, जिस चीज़ को जो चाहिए हमने उसी को वो दिया, हमने कटौती नहीं करी। तो ऐसे सिर्फ 10% फार्मर्स होंगे जो प्रिसीजन फार्मिंग करते हैं। Limited access to the awareness of modern agriculture technology impedes progress. The cost of adopting new technology can be barrier for the small and marginal farmer. एक मेन कॉज बस यही है कि हमारे पास लैंड होल्डिंग इतनी ज़्यादा नहीं, जिसकी वजह से हम स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी में आके अटक जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी इनएडुकेट क्रेडिट फैसिलिटीज। अब जैसे कि आपके पास होता है, फार्मर्स को बहुत ज़्यादा, फार्मर्स जब भी लोन लेने जाते हैं उनको बहुत स्ट्रगल देखना पड़ता है, दे आर नॉट डूइंग दैट वेल, कि उनको जो अमाउंट मिलना चाहिए या जो आपका, मतलब लोग कहते हैं कि हमने लोन लिया एंड हम ब्याज पे ब्याज चुकाए जा रहे हैं, अभी तक मूल हमने नहीं चुकाया, लाइक द मेन अमाउंट वी हैव नॉट पेड, वी आर जस्ट पेइंग द लोन्स। तो ये एक काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स होता था पुराने टाइम पे, ग्रास रूट लेवल्स पे ये अभी भी हो रहा होगा, आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई दैट। जो करंट फैसिलिटीज हैं, सो उसको करने के लिए हमने केसीसी भी बनाए, किसान क्रेडिट कार्ड, जो एक प्रोवाइड करता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में चलता है।
तो इसी को हम देखते हैं। फार्मर ऑफन फेस चैलेंजेस इन एक्सेसिंग क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर प्रमोटिंग for purchasing input and investing in modern farming practices. This can lead to a cycle of debt and financial insecurity. ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। क्लाइमेट चेंज जो है, सब लोग बोलते हैं कि भाई पटाखे चलाओ, पराली जलाओ, डिफरेंट डिफरेंट, अभी दिल्ली में लोग फेस कर रहे हैं, लगता है AQI। बट ये जो क्लाइमेट चेंजेस हैं और जो बाकी क्लाइमेट चेंजेस जो क्रिएट हो रहे हैं, उनकी वजह से इंक्रीज ऑफ हीट वेव हुई, फ्लड हुआ, कहीं पे सूखा पड़ गया। अब इससे जो फार्मिंग साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है कि भाई जिस सीजन में यहाँ पे होनी थी बारिश, अब उस सीजन में तो हो गया सूखा, उस सीजन में बारिश हुई नहीं, बारिश हुई एक महीने बाद, या बारिश अगर 15 दिन बाद भी हुई, तो पूरा जो पैटर्न है मेरे उगाने का, व्हाट आई एम गोइंग टू ग्रो, व्हाट आई एम गोइंग टू प्लांट, वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे अलाइन कर लूंगा लेकिन मैं आगे अलाइन नहीं कर पाऊंगा। जिस सीजन में मुझे अपने क्रॉप के ऊपर छोटी छोटी ओस की बूंदें चाहिए टू मेक इट ग्रो बेटर, उस सीजन में मुझे वो ओस नहीं मिलेगी। तो शिफ्टिंग इन सीजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस भी अगर टेम्परेचर ड्रॉप होता है वीट के टाइम पे, तो जो क्रॉप की यील्ड है वो 4 से 5% नीचे गिर जाती है। सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर कितना कर सकता है। लाइक इसी से हम रिमोट चेंज करते हैं 1 डिग्री, एंड दैट इज लाइक 4 to 5% आपकी क्रॉप ड्रॉप हो गई। दिस इज वॉट क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है। क्लाइमेट चेंज poses significant threat to agriculture, leading to unpredictable weather patterns, extreme events, and altered growing season. Farmer needs to adapt strategy to cope with these changes. Addressing these challenges require comprehensive policy, measure investment in the infrastructure and technology, and the focus on sustainable agriculture practices to ensure long-term viable Indian agriculture. And now here are some descriptive questions. तो ये हम next lecture में कर सकते हैं. Like we are going to end this at the part third, and descriptive questions हम next वाले में करते हैं. So thank you, and I hope आपको ये first lecture better लगा हो. Like first lecture नहीं, it's a 3-part thing, and I hope आपके comments, आपके suggestions हमेशा खुले हुए हैं comment box में. Thank you.